Question number 5. Question number 5. Rajiv obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. So what is his 8.1 का question 5? First unit test में तो उसे 70 marks मिले, सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसे 75 मिले, थर्ड टेस्ट में हम लोग बोलेंगे लेट हिम गेट x मार्क्स. अब इनका एवरेज कैसे आएगा? 70 प्लस 75 प्लस x/3. लेकिन ये एवरेज जो है ये एटलीस्ट 60 होना चाहिए. एटलीस्ट 60 का मतलब क्या है? कम से कम 60 होना चाहिए. So this should be average should be greater than or equal to 60. Yes. So can I write 145 plus x/3 should be greater than or equal to 60? That is, I can say 145 plus x is greater than or equal to 180. So x is greater than or equal to 180 minus 145. X is greater than or equal to, what does it mean? कि राजीव को थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम 35 मार्क्स होने चाहिए. 35 से ज्यादा होगा चलेगा, कम होगा. Getting this? Yes. To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 exams, each out of 100. If Sunita's marks in first 4 exams are 87, 92, 94, 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th exam to get grade A in the course. तो हम लोग बोलेंगे कि let the minimum marks be x. Let minimum marks be x. तो पांचों एग्जाम का एवरेज जो है वो 90 या 90 से ज्यादा होना चाहिए. तो पांचों एग्जाम्स, पहले 4 एग्जाम्स के तो मार्क्स पता है आपको, 87, 92, 94, 95 इतने है, प्लस x अपॉन 5. दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90. सो कैन आई से 87 plus 94 plus 92 plus 95 plus x is greater than 450. This 5 went there. Yes, please tell me this. 87 plus 90, 80 plus 90, 170. 170 plus 90, 260. 260 plus 90, 350. आता है 7 plus 4, 11. 11 plus 2, 13. 13 plus 5, 18. 368. So it is 368 plus x is greater than equal to 450. X should be greater than equal to 450 minus 368. X is greater than equal to what? 82. So the minimum marks that a person should get in the 5th exam should be greater than or equal to 82. So that the average will be 90. हाँ, जो भी है वो पर्सन सुनीता. Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. You want a pair of consecutive odd numbers. दोनों के दोनों odd numbers 10 से छोटे होने चाहिए.
लेकिन उनकी एडिशन जो है वो 11 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके कैसे करेंगे इसको? Let x and y be two odd consecutive odd number, right? Consecutive odd number मतलब क्या? 1, 3, 5. These are consecutive odd numbers. Okay. Now the condition is x should be less than 10. Y should also be less than 10. But x plus y should be greater than 11, right? अब ऐसे कौन कौन से ऑड नंबर्स है जो 10 से तो छोटे हैं लेकिन उनके जो एडिशन है वो 11 से ज्यादा है? तो हम लोग ऑड नंबर्स 10 से छोटे ऑड नंबर्स कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9. हम लोग इधर से शुरू करेंगे. X can be 9 and Y can be 7 क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए. या फिर x can be 7 and y can be 9. X can be 9. Sorry. X can be 7 and y can be 5. Or x can be 5 and y can be 7. इतने आएंगे. और कुछ आएगा इसमें? क्योंकि 1, 3 या 3, 5 को हम लोग ले नहीं सकते. उनके एडिशन 11 से कम है. गेटिंग दिस? नहीं, इसमें इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन नहीं आया है. इनइक्वालिटी बस फॉर्म हो गई है. क्वेश्चन नंबर 8. Find all pairs of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23. Question 8. Let x and y be consecutive even numbers. Both of them are greater than 5. So x is greater than 5 and y is also greater than 5. Okay. But their addition, that is x plus y, is less than 23. So, what is the next consecutive even number after 5? 6, 8, 10, 12, 14. पण आता यांचे ऍडिशन करून बघू आपण. 6 plus 8. 8 आणि 6 पण म्हणजे मग एक x जर 6 असेल तर y 8 असू शकतो किंवा x जर 8 असेल तर y 6 असू शकतो. 8 आणि 10. X can be 10, y can be 8, or x can be 8, y can be 10. Then next 10 and 12. 22. So x can be 10, y can be 12, or x can be 12, y can be 10. Yes. 12 and 14. So we will not do that. Izale? These are the only options. 6, 8, 10, 12. Question number 9. The longest side of a triangle is twice the shortest side and the third side is 2 centimeters longer than the shortest side. Find the perimeter of a triangle. If the perimeter of a triangle is more than 166 centimeters, find the minimum length of the shortest side.
9 sum. तो उन्होंने क्या बोला है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, और हमको शॉर्टेस्ट साइड निकालनी है। हम लोग बोलेंगे लेट शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, तो लॉन्गेस्ट कितनी होगी, फिर थर्ड साइड का क्या है, द थर्ड साइड इज 2 centimeter longer than the shortest side. So the third side is 2 centimeter longer than the shortest, that is x plus 2. And they are saying that the perimeter is greater than 166 centimeter. Perimeter of a triangle is sum of all sides of a triangle. So x plus 2x plus x plus 2 should be greater than 166, 3x, 4x, 4x plus 2 is greater than 166, 4x is greater than 164, x is greater than what? 41 centimeter. What is x? Shortest side. What should be the minimum length of shortest side? 41 centimeter. झालं? एकदम easy. The shortest side should be more than 41 centimeter. Graphical representation of inequations is very easy. But before that, let us learn how to graphically represent equations. If I have an equation called x is equals to 3, how will I draw the graph of this? I will draw Cartesian plane. X is equals to 3 means what? X axis पे 3 देख लेंगे हम लोग और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा y एक्सिस को, जो 3 से पास होगा, बराबर है? तो ये जो लाइन है वो x is equals to 3 कहलाए. गेटिंग? अगर मैंने आपको बोला y is equals to 2, वन टू, एक लाइन जाएगी अब यहां से, जो 2 पर से पास होगी, y is equals to 2 आ गई. आप थोड़ा सा ध्यान रखो अब यहाँ पे कि x is equals to 3 में एक ही वेरिएबल था, तो वो लाइन जो है वो एक ही एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रही है. y is equals to 2 में कितने वेरिएबल है, तो वो एक ही एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रही है. ओके, अब अगर मैंने बोला एक और एक लाइन है 2x plus 3y is equals to 6, दो वेरिएबल है तो ऑब्वियसली ये दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. अगर इसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया तो y तो 0 हो जाता है. So 2x plus 3 into 0 is equals to 6. 2x is 6, x is equals to 3. So the point of intersection is 3 and 0. अगर इसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो y 0 हो गया, तो x 3 आ गया. अगर इसने y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो x 0 हो गया, y क्या होगा 2, y is 2, तो ये पॉइंट होगा 0 2. अब ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस.
मैंने इधर मार्क किया 1 2 3 और इधर मैंने मार्क किया 1 2 3 with whatever scale. Now I will mark the point 3 0 here, and here I'll mark the point 0 2. Now I will join these 2 points by a straight line. What is this line? This line represents the equation 2x plus 3y is equals to 6. Till now we have drawn graphs of equations. इक्वेशन के ग्राफ निकाले हम लोगों ने. अब हम लोग इन इक्वेशन के ग्राफ निकाल. ओके बहुत इजी है ये. अब इन इक्वेशन, सपोज मेरा इन इक्वेशन है x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे हम लोग? तो मैं इसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगी. x इज इक्वल्स टू 3 बोल दूंगी मैं. x इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ कैसे आएगा? पैरेलल टू y एक्सिस. ये तो लाइन आ गई इक्वेशन की, क्योंकि इक्वेशन की जो आएगी वो होगी लाइन, लेकिन इन इक्वेशन की जो आएगी वो होगी एरिया. x इज इक्वल्स टू 3, तो इस इन इक्वेशन की एरिया क्या होगी? This side, does it represents x is less than equal to 3? क्योंकि अगर 3 यहाँ है तो ये साइड पे लेस देन इक्वल टू 3 के बारे में बात हो रही है. श्योर? तो इक्वेशन था तो उसकी लाइन थी, इन इक्वेशन है तो उसका क्या है? एरिया या रीजन, या उसे LPP दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में इस तरह के एरिया को एक नाम दिया गया है और उसे हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन. दिस इज देयर फॉर योर फाउंडेशन ऑल्सो. नाही, हा इथून पूर्ण सगळा एरिया जो आहे तो या इन इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतो. ओके तुम्हाला फाउंडेशनला सुद्धा इन इक्वेशनच्या लाइन्स आणि त्यांची फिजिबल एरिया एवढंच आहे. ते सगळं आधीचे जे न्यूमरिकल सम्स होते ते फाउंडेशनला नाही आहेत, पण हे ग्राफ फाउंडेशनला आहे. आता नेक्स्ट होतं आपलं. नेक्स्ट काय होतं? मी आता एक घेईन की y इज ग्रेटर दॅन 2, कारण मी आता एक इकडे आय हॅव टेकन x इज लेस दॅन इक्वल टू 3, so I will take y is greater than equal to 2. वैसे मैं बता दूं ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्राफ में कोई खास चेंज नहीं होता है, क्योंकि ग्राफ में हर डिनोमिनेशन की वैल्यूज आप ले सकते हो. तो 2 से बड़ा 2.00001 भी होगा, जो बिल्कुल 2 के करीब होगा, इतने करीब होगा कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है. तो ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू डजंट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट. ओके तो मैं इस इन इक्वेशन की लाइन कैसे निकाल? फर्स्ट आई विल ट्रीट इट एज एन इक्वेशन, राइट? आई विल से लेट y be equal to 2. नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. y is equal to 2 का ग्राफ निकाल लेंगे. अब ऐसा कुछ आएगा y is equal to 2, लेकिन हमको इक्वल टू तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि इक्वल टू की मिलती है लाइन, इन इक्वेशन की मिलती है एरिया. ग्रेटर देन इक्वल टू, y इधर 2 है, इधर 2 से कम है, तो इधर 2 से ज्यादा है, तो ये जो ऊपर वाली एरिया है ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करती है. इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिबल रीजन. ओके ये वर्ड फिजिबल रीजन यहाँ पे यूज तो नहीं किया गया है, बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इट इज कॉल्ड टेक्निकली अ फिजिबल रीजन. So how to draw graph of inequality? First treat them equality, draw the line, then mark the area. Simple. मग जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये 2-3 इनइक्वालिटी एकाच ग्राफ मध्ये टाकून कॉमन एरिया मार्क करायचे बस. ते पण अजून सोपं आहे.
आपण करू ते हो, नहीं तो एरिया कशी कळेल ना. ये है तेरा इलाका, ये है मेरा इलाका, तेरे को तेरा इलाका समझ में आना चाहिए. Yes. Now this was graph of inequation in one variable. Let us take graph of inequation in two variables. तो हम लोगों ने लिया था 2x plus 3y is equals to 6. मैं बोलूंगी less than equal to 6. ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोल सकते हैं, अभी मैं समझाने के लिए लेस देन इक्वल टू. तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है बताओ. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यू विल कंसिडर दिस एज इज इक्वल्स टू 2x plus 3y is equals to 6. अब अगर x 0 होगा तो y क्या होता है 2. पॉइंट है 0 2. अगर y 0 होगा तो x क्या होगा 3. पॉइंट इज 3 0. तो ये है 3 0, ये है 0 2. हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे एक लाइन से. कर लिया ज्वाइन, ये बन गई लाइन. अब अगर आप देखो तो ये लाइन पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है. ओके, इसमें से एक हिस्सा जो होगा वो लेस देन का होगा, दूसरा जो होगा वो ग्रेटर देन. पता कैसे चलेगा कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर देन? तो दो तरीके हैं. पहला तरीका थोड़ा लॉन्ग कट है. मैं इधर एक पॉइंट ले लूं 3 2 और मैं इधर एक पॉइंट ले लूं 0 0. तो मैंने अगर ये पॉइंट डाला 3 2 इसमें, तो 2 into 3 plus 3 into 2, 6 plus 6, ये क्या हो रहा है 12. 12 is it less than equal to 6? No. तो ये तो ग्रेटर देन वाली एरिया बन गई. अगर मैंने इस एरिया का पॉइंट ले लिया 0 0, तो ये 0 हो जाएगा. Is it less than equal to 6? Yes. So what is my less than equal to area? ये है लॉन्ग कट. अब शॉर्टकट. इमेजिन करो कि आप इस एंटायर लाइन के इस छोर पे खड़े हो. ओके, नीचे वाले पॉइंट पे आप खड़े हो. ऐसा इमेजिन करने का. आपके राइट हैंड साइड पे सब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सब लेस देन. सिंपल. कटकटच करायची नाही. कोणती लाईन असू दे. इमॅजिन काय करायचं, आपण त्याच्या सगळ्यात खालच्या पॉइंट वरती उभे आहोत. आपल्या उजवीकडे काय आहे ग्रेटर दॅन, आपल्या डावीकडे लेस दॅन. 95% time this technique works. 5% time sometimes when the line is like this technique do not work. तब आपको ये पॉइंट के साथ वर्क करना. ओके, लेकिन 95% टाइम्स ये टेक्निक काम कर जाती है, इसलिए मैंने बताया. गेटिंग दिस?